जय जिनेन्द्र। Hey, Jai Jirendra Manit, Jai Jirendra Arnav. So we can start Pathshala with Namokar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Sahunam, Eso Panchanamokaro, Sauva Pavapanasano, Mangalaanancha Sauvesim Padmam Havai Mangalam. Okay, Arnav and Manit, we also do another Mangalacharan, right? Do you know there's the Mangalacharan, Chhahdhala's Mangalacharan by heart? Okay, Manit, yes, go ahead. इन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समरिके. Very good, very good. Manit, can you also turn on your video as well? Okay, so what I will do, let me. So today, anyway, we have already did a couple of things, but so today we can start Chhahdhala with the stanza 1, 2. I try to cover 1, 2, 3, fall into this one, or try to cover all 4 as well, right? So a couple of things we will be learning up. Let me share my screen pretty fast. Okay, Arnav and Manit, are you able to see my screen? Yeah. Yes. Okay, so what we'll do, we can go pretty fast with this the concept, right? We already covered up this one. There are the 3 realms or 3 universe, right, Manit and Arnav? Okay, or Vitrag Vigyan Ta Hi Sar Hai. So what is the Vitrag and what is the Vigyan? Who can tell me? You both are taking notes, correct, Manit and Arnav? So what do you mean by Vitrag? Knowledge? Mhm. Not is it infinite knowledge? Infinite knowledge we can cover under Vigyanta. No, not connected to knowledge, not attached. Not attached, or means they are not feeling any sorrow, pain, right? Or not attachment, not love, hatred, nothing up there on. Right? So why it is not? Do you know? What is a reason for a rag? We will be just, this is little bit revision. Okay. So what is a rag? Mani, do you know राग क्या होता है?
We say that one, right? Rag and Dresh. Okay. So what is the rag? Rag means, okay, if you know something and you love it, you like it, okay, or you can हम वही बोलेंगे कि जैसे तुम उस पे it's like you believe that that is yours one. It's called a rag. So first things one. So that rag means, so whenever you have a rag or dresh, there should be minimum two parties, right? First one is you, and another one is the other things that you believe it's yours. Okay. So I can simply tell you in an example, right? So if you have do you have a pencil that is your one? Mani, तुम्हारे पास pencil है, right? You have a pencil or a pen. Okay. So if I, yes, very good. So if I borrow you, so what is you says? And if I want to return and say, like, whose this pencil is? So Manit bolega, this is mine, sir. Okay, can I take it back? And I said, yeah, sure. Okay, and what if it will be lost then? You feel a little bit pain? यार मेरी pencil गुम गई. So in a rag or a dress, there should be minimum how many parties involved? Two parties. First party is you, and other party is either things or living beings or anything. Okay, and for that one, in your side one, you believe that that is either you yourself, it is yours, or it belongs to you. Okay, so that is connected with what? That is connected with belief, right? So there are the two parties, but how this the two party has a connection? Is a connections with belief, correct? जैसे तुम मानोगे कि ये either तुम हो, तुम्हारा है, या मीन्स तुमको पसंद है. Those are the only three possibilities. So that is called a rag. And whenever there is a rag, there is also a dresh as well. Automatically, it's like a byproduct. It is the second side of the coin. Because whenever you say, I like something, then there is always been something that you dislike it. Correct? सही ना? जैसे मैं अर्णव को पूछूंगा कि अर्णव, okay, what is your favorite sweet? बूंदी के लड्डू. बूंदी के लड्डू, राइट? सो जैसे अर्णव ने बोला कि मुझे बूंदी के लड्डू काफी पसंद है, तो देर आर समथिंग that the sweets even he doesn't like it as at all, correct? तो जहां पे लाइकिंग है तो उसके दूसरी साइड पे डिसलाइकिंग भी है, एंड दैट्स एग्जिस्ट, करेक्ट? राइट मनी, समझ रहे हो? बिकॉज दे आर ऑलवेज बीन वर्किंग इन ए पेयर, वो ऑलवेज पेयर में ही होता है. ओके, जैसे तुम ओके, इफ यू फाइंड आउट अ कॉइन, and so whenever you flip the coin, okay, which side are you seeing? Front or back? If you flip that the coin, okay, and now coin it is on the ground, so तुम्हें कौन सा साइड दिखेगा, फ्रंट और बैक? हेड दिखेगा या टेल दिखेगा, बताओ? कम ऑन मनी. सॉरी, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि अगर तुम कोई कॉइन जो है ना वो तुम टॉस करते हो, इफ यू टॉस ए कॉइन, राइट, एंड नाउ दैट इट इज ऑन अ ग्राउंड, ओके, तो तुम्हें कौन सी साइड दिखेगी? तो ग्राउंड के ऑपोजिट तरफ फेस कर रही है. तुम्हें कौन सी साइड दिखेगी?
जो साइड ग्राउंड को फेस नहीं कर रही वो दिखेगी। जो ग्राउंड को फेस नहीं कर रही है वही तुम्हें दिखेगी, करेक्ट। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, वो चाहे हेड हो या टेल हो, मीन्स तुम्हें हम उसको बोलेंगे फ्रंट साइड। सो तुम्हें ऑलवेज बीन यू आर लुकिंग अ फ्रंट साइड। इवन तो यू आर लुकिंग अ फ्रंट साइड, देर इज अ बैक साइड टू, करेक्ट। जो फ्रंट में होगा वही तुम्हें दिखेगा, तो उसके बैक में जो है, that is always been there. So it is the same way, like, okay, if you like something, there is always been a head right one. So that's why vitrag means now usko kuch pasand na, they are not liking it anything. So that's why they do not hate anything as well. Okay, or for them one, there is not any dislike as well. But why vitrag is the most important quality? Manit and Arnav, Because make it detaching. because yeah, because you know that the attachment is give you pain, right? पेन क्यों तुम्हें देता है? तुम जिससे भी अटैच होगे डेफिनेटली इट विल बी गिव यू पेन। व्हाई? मनी, समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? तुम जिस भी चीज से अटैच होगे वो तुम्हें पेन देगा अल्टीमेटली। एग्जाम्पल दे सकते हो? नो, क्या एग्जाम्पल? मैं कुछ खा रहा हूँ जो मुझे पसंद है और वो खत्म हो गया, अब बचा ही नहीं है, तो पेन आ गया बिकॉज हाँ ऑफ सही है, राइट। दैट। हाँ। हाँ, क्योंकि फिर तुम्हें और खाने की चाहत है, मीन्स यू क्रेविंग फॉर समथिंग इवन मोर, एंड इट इज नॉट देयर, सो यू फील, क्या फील करोगे? थोड़ा सा पेन फील करोगे। ओके, सही है, राइट मनीत? इफ मनीत हैज their favorite shirt, okay, but what happened, you know, that means Manit little bit grown up, little big one, and now that the shirts is for him, it's like an become a little short, right? Even though Manit like it, but Manit cannot wear it. सही है मनीत? हाँ, तो वो तुम्हें डेफिनेटली, वो तुम्हें थोड़ा सा दुख देगा। क्यों दुख देगा? दूसरी चीज है कि बिकॉज दैट इज, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पार्टी, यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ। सही ना? हम्म। जैसे तुम्हारे पापा को कब गुस्सा आएगा वो तुम कंट्रोल कर सकते हो क्या? तुम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? उनको गुस्सा नहीं आए। नहीं, तुम अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा हाँ। उनको गुस्सा आए ना आए, उनको तो तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सही ना? अगर इफ यू कैन कंट्रोल दैट थिंग्स, तब तो कभी तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा ही नहीं। बट दैट इज लाइक एन हार्डली इम्पॉसिबल थिंग। सही है? सो व्हाट यू कैन कंट्रोल? यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल द अदर पार्टी। ओके। और जहां पे इन बिटवीन दोस्त टू पार्टी जब भी कोई स्ट्रेस होगा, तो वो तुम्हें क्या देगा? दुख देगा कि खुशी देगा? मनी, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। हाँ। हाँ, तो मुझे समझाओ, तो फिर वो क्या होगा अगर दो पार्टी के बीच में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया तो? विल यू एंजॉय इट, और यू कैन नॉट एंजॉय इट, और यू विल फील सम सोरो, पेन, और कुछ भी, चाहे डिस्ट्रेस और कुछ भी तुम, राइट, अनइजीनेस। ओके, इसका मतलब है कि तुम्हें सुख नहीं मिल रहा है। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? शिव, आवर ऑब्जेक्टिव इज सुख लेना है। ओके, सो सुख तभी मिलेगा जब आई डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंसी। समझ गए ना? अगर मेरी डिपेंडेंसी दूसरी पार्टी पे है तो मैं कैसे खुश रहूंगा?
correct? It is the same way right now you are living with your parents. Okay, so whatever your mom cook for a dinner or a lunch, you have to eat it. That's it, done. Today you just think that, hey, I want to eat something else. Will you? Hmm? No, because you want to. No, because your mom is cooking for you. So that's why you have a dependency towards your mom, right? कि आज मम्मी ने जो बनाया वही खाना पड़ेगा. आज तुम्हें चाहे कुछ भी और खाने की इच्छा हुई फिर भी नहीं खा सकोगे. सही ना? So dependency is always been not good. सही है? Okay. So that's why, and that is what, and everything is for the independenceness. I do not need to depend on any kind of the karma. I do not need to depend on, that anybody else. I do not need to depend on surroundings, whatever happens surrounding into me. Okay. I want a full freedom. Say, right? I want a full power. Whatever I want to do, I can able to do it. Okay, and that's why this the vitrag is important. Now they do not have, they are breaking it down that the relations with the other party. So now that the dependency is been broken, so अब other party में कुछ भी होगा ना इनको खुशी देगा और ना इनको दुख देगा. समझ गए ना? इसीलिए वितरागता के अंदर ही खुशी है. Because now I am not depend on anyone else. I am a self-reliance. I am a self-sufficient. समझ गए ना? Right, Manit, if you are self-made, a billionaire, millionaire, and whatever the cars you want to buy it, you can buy it, right? सही? हाँ, तुम्हें किसी पे डिपेंड है? नहीं है. लेकिन अभी तुम कॉलेज तक पहुंचे and you are depend on your parents, and if you want to buy any car, so now what happened? मनीत, बताओ फिर क्या होगा? You can only give a suggestions, right? Whatever they like it, that you need to choose it. सही ना? अभी भी तुम्हारे डिपेंडेंसी है. If you are going out with your parents one and whatever the clothes you want to buy, can you able to buy it? Sometimes you are just making a compromise it. Okay, you, even though you want to buy it, but because you have a dependency. But once you become an independent, then what would be? Whatever you like it, I can buy it. you buy it, you have it, you enjoy it. So that is called a vitrag, because now you are not depend on other party. और अदर पार्टी से क्या होगा? इफ यू आर ब्रेकिंग दैट रिलेशंस, ना तो तुम्हें वो खुशी देगा और ना ही तुम्हें वो दुख देगा. यू आर टोटली इंडिपेंडेंट, एंड वंस यू आर इंडिपेंडेंट, दैट इज द ग्रेट हैप्पीनेस. समझ गए? You have a great knowledge, means you have entire knowledge, and you are now not depend on anyone. You are not attached. That's how you can celebrate Shiva Swarup. That's how you can celebrate a full happiness. समझ गए, right? Or whenever you are celebrating or enjoying the full happiness, you become a happiness itself. उसमें पूरा एकाकार हो जाओगे. And how to achieve these things? They says नमः, मैं उनको नमन करता हूँ. त्रियोग, मन, वचन और काय के से तीनों को मिला के कॉन्सेंट्रेट करके संहारी के मीन्स कॉन्सेंट्रेट करके मैं नमस्कार करता हूँ. नमस्कार करता हूँ माने कि मैं चाहता हूँ. आई वॉन्ट इट. एंड हाउ आई कैन अचीव इट? बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ मन, वचन एंड काय. So that is what we did it. Then after there is another concept, and this is already been we go through, right? Last time we have already proven in a couple of weeks one that there should be other than us, there should be two more realms, correct? More
दो मोर यूनिवर्स होने चाहिए, जहां पे एक अच्छाई के लिए, जहां पे तुम्हें अच्छाई का फल मिलेगा, एक बुराई के लिए, कि जहां पे तुमने जितना भी बुरा किया है ना, you can get a punishment for that one. Correct? So that's why this is a map, and that's why it's called a तीन लोक. और एक जगह ऐसी होगी कि अगर तुम ना तो तुम अच्छा करोगे और ना ही तुम बुरा करोगे, तुम अच्छा और बुरा दोनों करना बंद कर दोगे, तो तुम कहाँ पे रहोगे? तो उसके लिए भी एक और जहां होना चाहिए. सो दैट इज द सिद्ध शिला. ना तुमने अच्छा किया तो ना तुम्हें अच्छा का फल मिलेगा, ना तुमने बुरा किया तो ना तुम्हें बुरा का फल मिलेगा, because this is depend on actions and reactions. So now you are not doing any action, so there should be some other state as well. There should be some place you are able to see that the siddha sila, right? So whenever you stop acting, okay, so if you are stop doing any kind of the actions, you are stop receiving any reactions, and where you can live in your self-sufficient state, that is the siddha sila. Okay, so that is how this has been logically been proved. Okay, मनीत, कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे बताओ. अर्नव, सही है. हाँ, ओके, मुझे एग्जाम्पल बताओ. चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन समझ गया है. एग्जाम्पल से बताओ. ये मत मध्य लोग और जो लोग, हाँ हाँ, मगर मुझे एग्जाम्पल से ठीक है। बताओ. तीन पार्ट होते हैं यूनिवर्स के। एक होता हम्म, है मध्य लोक, जहाँ पर हम्म, इंसान और जानवर रहते हैं, इन द मिडल। फिर हम्म, उसके ऊपर रहता है अर्धलोक, उसमें देव 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 रहते हैं। और हम्म, सबसे नीचे रहता है उद्धलोक, जिसमें अधोलोक. अधोलोक, जिसमें आ, जिसको नर्क भी कहते हैं। उधर हम्म, जो गंदे पाप करे उनका फल मिलता है। पर एक हाँ. सिद्ध शिला रहती है जो सबसे टॉप पे रहती है, बिल्कुल सबसे टॉप, जिस हम्म, जिसपे वो रहते हैं जो जिनने जिनको कुछ अच्छा किया भी उसका नहीं फल, करते, बुरा अच्छा भी भी नहीं नहीं करते, करते. हाँ बुरा भी नहीं। सही ना. अभी तुमने अभी वितराग पढ़ा, राइट? तो उसने क्या किया कि आई ब्रेक डाउन माई कनेक्शंस विद द अदर पार्टी. तब तो इसलिए वो सुखी हो गए. तो वो कहाँ पे रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे. ओके. और सिद्धशिला टॉप पे ही क्यों है, पता है? कौन बताएगा? मानी, सिद्धशिला टॉप पे ही क्यों है? यहाँ पे बीच में भी हम रख सकते थे, ऊपर ही क्यों? मेरे को लगता है बिकॉज जैसे ह्यूमन हाई हाई नहीं है, तो जैसे सबसे जैसे जिनने तीनों ज्वेल्स का नाश करा है, और तीनों जो वो करे, वो सबसे ऊपर है. ओके. अर्नव. हाँ, सिद्धशिला सबसे ऊपर ही क्यों है? और वहीं पे मोक्ष में जाने वाले लोग, वहीं पे मोक्ष में जाने वाले सारे जीव वहां पे क्यों रहते हैं? क्योंकि अ, नीचे से ऊपर जाते रहोगे, मतलब टॉप पे रहते तो मतलब सबसे बेस्ट माना जाता है, राइट? सबसे बेस्ट हम्म, प्लेस, हम्म. तो इसलिए। ओके, पता है. ओके, तो मैं उसको दो या तीन हिसाब से समझाऊंगा. जो तुमने कहा वो भी सही है. जैसे, what is the nature of our जीव? Do you know? Our nature of our जीव is urdhva gaman. Urdhva means is always been going up. Okay.
So it's like our Jeev, it's like an, that means, have you seen that the balloon, okay, which one has a helium filled with this, the helium one? Have you seen that the balloon in a birthday parties, and you are right, you holding a string and it is go, but if you leave that the strings, what would be happen? Where this the balloon goes? Up. Up. Bus. So that is how it is. Because why it's going up? Because it is there. It's nature. It's always been helium's nature. Its helium is pretty light. That's why it's always going towards upside. Correct? So same way our Jeev has a nature to go up. Okay. So right now, why it is down? Because we are bound. However, that is that the balloon is bound with this the string, and the string is with some kind of the weight. Either you hold it, so it means that you are holding that the weight, right? Because of that the weight, it is down. But if that the once the weight release, then it's going. कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा. Very ऊपर. good. So right now, what kind of the weight we have? Yeah. So sorry. Because we are also Jeev, right? We have Jeev. So that's why I said, okay, it is our nature to always going up, but we are not going up there. We have a weight. We tied with the weight. So what kind of the weight we have? Going मेरे मतलब जीव पे tied. कौन सा weight है? Because of that weight, we cannot going up. We are Okay, gonna go down. right? Because अगर जैसे वो बलून ऊपर नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? कि हमने इधर उसको होल्ड किया है या तो उसको वेट से बांध के रखा हुआ है. That's why, right? But if there is no weight, then balloon can go up the same way. Our Jeev can also go up. But right now, अगर our weight नहीं Jeev तो surrounding with the weight. So what kind of the weight Jeev has, or myself has? Weight of, do you know there are the two kinds of the weight we have right now? First one is weight of karma, that holding us down, and another weight is weight of our body, right? Because our Jeev is residing where? Our Jeev is residing, our Jeev residing in our body. body, and our body has its own weight, correct? Right? And that Yes. is how we are say, okay, Arnav, what is your weight? And Arnav say, hey, I am 58 lb or 60 lb, something, whatever is your weight is weight, right? Because that's, you clearly say in a science once, you can measure it and you can say, hey, yeah, this is my weight, this is my height, correct? राइट? तो एक तो बॉडी का, और दूसरा कौन सा वेट हुआ? कर्म का वेट हुआ. तो इसीलिए जब तुम अच्छे कर्म करते हो ना, तो अच्छे कर्म का वेट कितना होता है? लाइट होता है तो आप ऊपर जाते हो. हाँ, और बुरे कर्म करते हो तो वो इतने स्ट्रॉन्ग और वेट वाले होते हैं, तो आपको वो कहाँ पे लेके जाएंगे? नीचे. नीचे. वेरी गुड. ओके. और आप कर्म से कैसे जुड़ोगे? अगर बुरे कर्म करोगे. नहीं, आप कर्म से ही कैसे जुड़ोगे? ओह. पता है? बिकॉज यू आर मेकिंग दैट द रिलेशंस. आप बोलते हो कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता. ओके. यू आर मेकिंग दैट द रिलेशंस, यू आर स्टार्टिंग दैट रिलेशंस. जैसे ही कर्म, हाउ इज द कर्म? यू नो दैट कर्म इज लाइक लिटरली वेटिंग. ओके. बाहर के कौन मुझे बुलाता है? इट्स लाइक ए भूत, इट्स लाइक ए घोस्ट. ओके. तो घोस्ट क्या करता है पता है? वो देखता रहता है कि जो मुझे बुलाएगा मैं वहां पे चला जाऊंगा. सही है? So that is the same way. You are calling a karma. Hey, ये मुझे अच्छा लगा, ये मेरा है, ये मैं हूँ. Okay, ये सारी चीजें. So that's how that the karma attracted and it stick to you.
हे तुमने मुझे बुलाया तो मैं चला आया. ओके मनीष, अर्नव, समझ गए? हाँ. हाँ, अगर तुम कर्म को बुलाओगे नहीं, नहीं आएंगे. Okay, so we have learned. So this is things we have learned. So now we'll go for another slide. Okay. Can I go drink water? Yeah, sure. Go ahead. अच्छा. Okay. तो अभी right now I'm taking a concept, but if you want, I can go pretty fast on this one up there. So there says, okay, who we only learn about Vitrag, but that is also, yes, Mani. Are we going to do a Kahoot for this? Kahoot? Yeah, definitely. Let me finish this one pretty fast and then after we can play Kahoot. How about that one? Good? Okay. So anyway, we already went through all these one up there. But if you want, I can take you now, or if you want, then we can skip and we can go for just the next one. Whatever it is. But this is anyway, it's up here one, so let's just touch it. Right? So this is okay, what kind of the relations? Now we are talking about the relations, right? Between two parties, between me and another party. So हमारे बीच में जो relations रहेगा वो कैसा रहेगा? How? What kind of the feelings we have? So this is janma, means yes, I'm taking a birth, right? In this the body. So once I'm taking a birth means now I have relations with the body. Then a jara or means budhapa. Okay, means even jara means yeah, it's going to be getting older and older. So age आएगी और फिर इस बॉडी से मेरा रिलेशंस खत्म तो क्या हो जाएगा? मरण. जैसे मरण हुआ तो मैं कहाँ पे जाऊंगा? दूसरी बॉडी में. बट जब तक मैं इस बॉडी में हूं तो मुझे इस बॉडी को फीड करना पड़ेगा, अदरवाइज ना तो वो बॉडी बढ़ेगी और ना ही वो सस्टेन रहेगी. सही ना? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा, हंगर. फिर प्यास भी लगेगी. ओके, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ द अदर रिलेशंस, यू नो दैट why you are curious to see something that is been saying no to you, because you feel, तुम क्या Surprise. feel? Yes, you like surprises. जैसे आपको गिफ्ट मिलता है, जैसे आपको बोला कि आपको कुछ गिफ्ट हाँ, so मिलेगा whenever once पर you receive those the gift, हाँ, हाँ, surprise. अगर वो गिफ्ट रैप में है तो मैं नहीं पता है उसमें क्या है, so you are more curious, right? So that is also relations between you and gift. These are the relations. What kind of the relations between you and other parties? Okay, the same way we are understanding. Fear, pain, we already know that one up there. Fear, sadness, कि अगर वो उस टूट गई, छूट गया या उसके साथ कुछ हुआ तो तुम्हें दुख भी होगा. फिर तुम्हें डिसीज भी होगा बिकॉज योर बॉडी है. तो वो always been running well ऐसा, that is not a ideal conditions, right? If you have a car, so sometimes तो breakdown होगा. सही ना? कोई खिलौना है तो कभी तो वो मैकेनिकल इश्यू करेगा. सो सेम वे बॉडी को क्या होगा? रोग होगा. देन आफ्टर शोक, व्हाट इज द शोक और मोर्निंग? जैसे ही वो चीज से बिछड़ गई तो तुम्हें क्या होगा? शोक होगा. ओके, या तो मोर्न करोगे उसका बिछड़ना. नाउ that is a breaking of that the relations. Then after delusion, more. This is the most important one. What do you mean by delusion? वो तुम्हारा है नहीं पर तुम मानते हो कि ये तुम्हारा है. ओके, ठीक है. अगर जो तुम्हारी पेंसिल है मनी, वो गुम जाएगी तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. मान लो तुम्हारी पेंसिल कहीं पे गुम हो गई, छूट गई, तुम्हें दुख होगा? मेरे को दुख
थोड़ा सा होएगा बट थोड़ा सा होएगा ना। हाँ, लेकिन पेंसिल को दुख होगा कि तुम उनसे बिछड़ गए। बोलो। ओके, अर्नव को मैं पूछता हूँ दूसरे हिसाब से, राइट? अर्नव, डू यू हैव ए मोबाइल और लैपटॉप? हाँ, लैपटॉप। लैपटॉप है, राइट? अगर आपका लैपटॉप किसी वजह से टूट गया, सो आपको दुख होगा। हाँ, होगा। ओके, और आपका लैपटॉप वहीं पे है, लेकिन आपका एक्सीडेंट हुआ और आप टूट गए, तो लैपटॉप को दुख होगा? नहीं। नहीं होगा। सो हाउ दैट इज द बैड थिंग, राइट? कि वो टूटता है तो तुम्हें दुख होता है, लेकिन तुम टूटते हो तो उनको दुख नहीं होता। नहीं होता होता। है कि नहीं होता? नहीं होता उनको। हाँ, so it means that फिर भी तुम उसको अपना मानते हो, so that is the delusion. Okay, still you are believing that thing is yours. वो तो तुम्हें अपना मानती है कि नहीं मानती है? Laptop don't care, right? Okay, it's not Arnav, then it's a money. I don't care who wants to use me or who wants to just toss me in a garbage or recycle. I don't care. सही ना? Right? So that is the delusion, that is the moh. समझ गए? Because that is only one-sided relations and you believe that that is yours one, so that is a delusion, but it is not yours. Same way is a hatred. वो आ गया कि जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ऐसी चीजें जो तुम्हें बुरा भी लगेगी, you hate it. It means that you have another kind of the relations between two of those one is a hate as well, correct? Do I need to explain or it's pretty self-explanatory? Self-explanatory है ना? जैसे यस। क्ला या हाँ, जैसे क्लास में तुम्हें कोई बच्चा काफी चिढ़ाता है, ओके, तुम पे बुली करता रहता है, तो तुम उसको कैसे देखोगे यार? ये तो तुम्हारा और उसका रिलेशंस कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, सही है, राइट? सो दैट इज द हेट्रेड, दैट इज द द्वेष। देन आफ्टर फियर, ओके, अगर कोई बोलेगा, जैसे मैं आपको दो वायर दूं, ओके, और उसमें से मैं दोनों वायर को एक बल्ब से टच करके दिखाऊं तो बल्ब जलेगा। फिर मैं मनित को बोलूं कि मनित, कैन यू टच वन वायर? Manit, will you dare to touch one wire? क्यों? लग सकती है, क्या लग सकता है? शौक आ सकता है। शौक आ सकता है, राइट? मीन्स यू हैव अ फियर कि मुझे कुछ, मेरा कुछ बुरा होगा, मुझे कुछ लगेगा। ओके, सो दैट इज द फियर, करेक्ट? मेरा नुकसान होगा, मुझे कुछ, so that kind of the feeling between you and that the wire, that is another relationship, it's called a fear. Then after sleep, nidra. Hmm? When you feel exhausted, what the things comes to you? Sleep, correct? So that is also relations. Then after, whenever you work hard, तो क्या होगा? पसीना, सही है? ओके, फिर एंग्जाइटी, चिंता होगी। ओके, कि यार ये मेरा फोन है, वो कहीं पे मैंने रखा था, पर कहाँ पे है? Did somebody stole it? Not. Okay. So that is also relations between you and that other party's anxiety. And then after pride, if something is belongs to you, you feel a pride. Being a Jain, you feel a pride, right? Sahi na? You feel a pride being a Jain, Manit? Yes, no? Yes, right? Very good. Because you believe that that is I am. So that is also another relations. And then after attachment, rag. We already explained this one. ये तुम्हें अच्छा लगता है. Now you are totally attached with that one. Okay, so this all kind of, and that's why जो वितरागी होते हैं उन्हें ये 18 टाइप के रिलेशंस
होते कि नहीं होते? वितरागी को होते। 18 नहीं होते। वितरागी, वित मीन्स चला गया। ओ हाँ हाँ, वितरागी, हाँ हाँ हाँ, नहीं होते। हाँ, जिसका राग चला गया, जिसके ये सारे रिलेशंस चले गए, ना कोई रिलेशंस ही है, तो इसके लिए, इसलिए वो दुखी भी नहीं होते. So we'll go. We already did these things up there. What is the Shiv, Shivkar, Namo Triyog? That is we done. This is done. Okay. So now Daulat Ramji has started stanza 1. क्या किया उसने? वो बोला, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार. J means in this, right? त्रिभुवन, in this the three limbs. उसमें क्या है? अनंत जीव है. Who we are? We are also a जीव. I am also a जीव, correct? And I am seeing you, Manit, and all other one up there. So इस संसार में अनंत जीव है. एंड वो क्या चाहते हैं? वो सुख चाहते हैं. और उनको किन से डर लगता है? दुख से डर लगता है. अगर दुख से डर नहीं लगता तो आप नरक में भी ऐसे ही चले जाते हैं. सही ना? मनी, डू यू वांट टू गो इन नरक? व्हाई? वहाँ वहाँ दुख पहुंचाते हैं लोग. हाँ, वहाँ काफी दुख होता है, तो वही तो बोलते हैं कि दुख से डरते हैं. भयवंत. ओके, तो दुख से डरते हैं. ताते, उसको. दुखहारी सुखकार, दुख को हराने वाला और दुख को भगाने वाला. और किसको लाने वाला? सुखकार, सुख को लाने वाला. जहां पे कार लगता है ना, तो लाने वाला. तो उनके दुखों को भगाने वाला और सुख को लाने वाला. ओके. ऐसा सीख, सीख यानी कि ऐसा लेसन. ऐसा लेसन कौन देते हैं? कहे, कहते हैं गुरु. जो गुरु है ना, ऐसा हमें लेसन देते हैं, सिखाते हैं. और वो कैसे सिखाते? करुणा की धार के. इनको करुणा आती है कि यार ये कितने दुखी हो रहे हैं, लेट मी टीच देम समथिंग, सो दे कैन get rid of all the pains, all the sorrows, all the anxieties, everything, and they also become a happy. Okay. इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ, मनीत, अर्नव. पहली इजी लाइन, पीजी. जय हाँ, जय त्रिभुवन में जीव अनंत का मतलब क्या है? So J means that. Okay. Tribhuvan. Three means three. Bhuvan means, okay, there are the three realms we already talk about. There are the three universe. So उसके अंदर, में means उसके अंदर, जीव जो है वो कितने हैं? अनंत है, इनफाइनाइट है. ओके. हम अकेले तो नहीं है ना in this world. Are we just alone? No, right? We are seeing the similar kind of us, so many, infinite. तो ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में अनंत जीव है. ओके. एंड वो सब क्या चाहते हैं? वाई यू आर स्टडिंग, वाई यू नो दैट मीन्स, वाई पीपल आर डूइंग ऑल दोस द एक्टिविटीज, इवन इंक्लूडिंग एन एनिमल्स टू, बिकॉज दे वांट टू बी ए हैप्पी. करेक्ट. खाना खाते हैं तो भी क्यों खाते हैं? हैप्पी होने के लिए. पढ़ते हो तो भी क्यों करते हो? हैप्पी होने के लिए. Because you'll think that, okay, once I'll finish my all graduations, I will have a nice job or nice business I earn, and from that whatever I'm doing, and then after I can start my any activities that's give me a pleasure. So वो सारे के सारे सुख चाहते हैं. और किससे डरते हैं?
दुख से डरते हैं, दुखते भयवंत। ओके, ताते, ताते मीन्स उनके। ओके, धैर्य, दुख को हरने वाला, दुख को दूर करने वाला, नाश करने वाला, सुख को लाने वाला, सुखकार लाने वाला। कहे, कहते हैं। सिख मीन्स क्या कहते हैं, तो वो लेसन हमें कहते हैं। कौन कहते हैं, तो कि गुरु कहते हैं। और कैसे कहते हैं, उनको करुणा आई, उनको काफी सारे हम पे दया आ गई कि यार ये बेकार में दुखी हो रहे, मैं उनको एक सही मार्ग दिखाऊं। तो वो करुणा धार करके, क्योंकि जब भी करुणा आती है उसको धारण क्यों किया है, कि कई बार ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर भी उनसे वो ऐसे नहीं कर देंगे कि ओके तुम नहीं मानते तो मैं नहीं कहता, चलो जाओ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, नहीं। और कोई बात नहीं। सिखाते हैं। हाँ, अभी नहीं मानते कोई बात नहीं, वापस अगर आपने वापस वही क्वेश्चन किया तो भी वो वापस जवाब देंगे, राइट। ऐसा नहीं एक बार तो बता दिया, कितनी बार पूछोगे, ऐसा नहीं करते। तो वही इसलिए उसको करुणा को धारण करते। उसको पता है कि ये सारे जीव दुखी है और सुख चाहते हैं, तो दुख में कुछ बोल गए होंगे, आई विल लेट इट गो। ओके, समझ गए। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आया, मीनिंग समझ में नहीं आया, सब कुछ गुड। Because हाँ Manit wants to play Kahoot, okay? So I also doing these things pretty fast. So this is their word. Anyway, we already did it. So, mm, okay. There is also another classifications for happiness means yes, Indriya and Atindriya. If you want, I can just explain you, right? This Indriya means external party, correct? But what are that external party that is very near to you? Okay. And Atindriya means no, you do not have any kind of those the senses. Why you do not have a senses? Because you are not divided, you are undivided, right? So whenever there are the senses, senses means a division. Touch can see or cannot see. अर्णव, जो टच नाम की सेंस है वो देख सकती है कि नहीं देख सकती? नहीं देख सकते। ओके, नहीं देख सकती। ओके, जो तुम स्मेल, जो सुगंध तुम जिससे स्मेल लेते हो वो देख सकता है कि नहीं देख सकती? नहीं। 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 और जो देख सकता है वो क्या सुगंध ले सकता है, वो क्या टेस्ट कर सकता है? नहीं। 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 जो सुन सकता है, ओके, वो क्या देख सकता है? नहीं। और जो देख सकता है वो क्या सुन सकता है? नहीं। नहीं। हाँ, तुमको सिर्फ दूर से कोई पिक्चर उसमें साउंड भी हो, तुम दिखाई जाए, तुम सिर्फ देख सकते हो, राइट। तो मेरा अगर कान में, या तो इफ यू ऑलरेडी सीन अप दैट वन, राइट, somebody has an issue with their ear one, they can see it but they cannot hear it. So it means that these the indriyas are, or senses are divided, and each senses is just work for themselves. Okay, Manit, समझ गए? Can you turn on your camera? समझ गए मनीत? तो ये सारी डिवाइडेड है, लेकिन यू आर अनडिवाइडेड because you do not have any kind of the senses. That's why you are undivided. Who has a senses? They are divided, right? जब पांचों मिलेगी तभी तो कुछ काम कर पाएगी। एक देखेगा, दूसरा सुनेगा, ओके, फिर तीसरा उसको टेस्ट करेगा, टच करेगा, स्मेल करेगा, ये सब पांचों मिलके कुछ ना कुछ काम कर सकती है। एक एक अकेली काम नहीं कर सकती, लेकिन तुम तो अकेले भी पूरा काम कर सकते हो। इसलिए जो पांचों में अगर कोऑर्डिनेशंस का अभाव हो जाए, देयर इज ऑल, इफ देयर इज काइंड ऑफ द मिसमैच, दैट लीड्स टू एंजाइटी। समझ गए? जैसे आंख का जैसे नंबर बढ़ता जाए, ओके, विदाउट द ग्लास यू कैन नॉट सी इट,
That's create an anxiety. तुम्हें सामने कुछ लिखा है, you try to read it, but you cannot without the glasses. So that create an anxiety, akulta. But in your one, because you do not have any senses, so that's why you have very calmness. You do not have anxiety. You do not have a dependency. And when there is a dependency, is always been ultimately it brings sorrow, right? While whenever you do not have a dependency, ultimately it brings happiness. That is we go through. Okay, so this one is a stanza 2. Okay, let's finish it pretty fast and then after we do the Kahoot. I think so Kahoot is also for the stanza 2. So, but if anything missing up, I will cover in next class one. ताहि सुनो पवि ताहि सुनो पवि मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो अनादि भूल आपको परमतवादी ताहि means okay. So we'll go word by word. Okay, first one, this is also a Hindi, but this is like a lyrical. So if you want to put it in a simple sentence once, so say, hey, listen everything. How you will listen it? अपने मन को स्थिर करके, right? तुमने अपने मन को स्थिर किया, तो यहाँ पे जब जहाँ पे सिर्फ मन बोला है तो वहां पे क्या समझना? तन वन वचन का है। मन. Okay, there are the यस एंड वचन तीनों को स्थिर करके सुनो. इसके अलावा अभी कुछ नहीं करो. किनको सुनो? ताही को, जो बताने वाला हूं उनको सुनो. ओके, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो जो चाहो अपनो कल्याण. कल्याण मीन्स अपना उद्धार, राइट? अपना प्रोग्रेशंस, राइट? अब जो तुम्हें जो कोई भी तुम्हारे इश्यूज है उससे छुटकारा. फिर क्या बोलते? मोह महामद पियो अनादि, यानी कि अनादि काल से तुम क्या पी रहे हो? मोह रूपी मदिरा को पी रहे हो. महामद, मद मीन्स मदिरा, जो नशा कारक है. ओके, लाइक दारू, लीकर. कौन से रूपी? मोह रूपी. और मोह क्या है? हमने वी ऑलरेडी लर्न फ्रॉम दोस्त 18 रिलेशंस. मोह इज लाइक ए डिल्यूजन. तुम ही सिर्फ अपना मानते हो तो तुम्हें अपना मानते ही नहीं, राइट? समझ गए ना? तो तुम ही उस पे पैसे लुटाए जा रहे हो, तुम ही अपने हिसाब से रिलेशंस रखे जा रहे हो. वो तो तुमसे कोई रिलेशन ही नहीं रखते. इसलिए वो बोलते हैं कि भाई हाँ, ऐसी जो तुम ऐसे नशे में हो ना, इंटॉक्सिकेशंस में हो, उनको छोड़ो. क्यों? क्योंकि भूल आपको. आप किसको भूल गए हो? ये मेरी है, तो आपका ध्यान कहाँ पे चला गया? उस पे. और आप किसको भूल गए? खुद को. समझ गए ना? ये मोबाइल मेरा है, तो आप मोबाइल से खेलते तो आपका ध्यान किस पे है? सिर्फ मोबाइल में ही है, आप पे तो नहीं है. अगर आप पे अपना ध्यान होता तो क्या होता? हम्म. अगर आप पे क्या? भूल आपको मीन्स अपने आप को भूल गए हो. किसको भूल गए हो? खुद अपने को। आप को. भूल आपको. भ्रमत. भ्रमत मीन्स भ्रमित हो चुके हो, टोटली जैसे पागल जैसे हो गए हो. भूल आपको भ्रमतवादी, और यहाँ तहाँ घूम रहे हो. अपने आप को भूल के कहीं पे भी तुम घूम रहे हो. भ्रमत मीन्स घूमना. ओके, और यहाँ जहाँ किसको भूल गए हो? अपने आप ही भूल गए हो. जैसे यू हैव सीन राइट कि जो कोई बंदा है उसने काफी दारू पी ली, तो उनको खुद का होश ठिकाना रहता है क्या? नहीं, वो कुछ भी कर लेगा। हाँ, उसको पता भी नहीं है. आप बोलोगे आप कौन? मैं
पता नहीं, नाम भी भूल गया मैं कौन। ऐसा भी होगा। कहाँ पे जाना है यार घर को, लेकिन आपका घर कहाँ है वो मुझे पता नहीं। हम्म। जो नशे में होगा, सही में काफी नशे में। सो दे फॉरगेट इट, राइट। सो इसलिए कि तुमने मोह रूपी दारू पिया है काफी। और कब से तुम पी रहे हो? अनादिकाल से। अगर तुम नहीं पी रहे होते तो अब तुम कहाँ पे होते? अगर तुम अनादिकाल से मोह रूपी दारू को नहीं पी रहे होते तो अभी तुम कहाँ पे होते? अगले देव में जाके अगले अगले मो- दे अभी तुम मोक्ष में होते। हाँ। सही में, राइट। Why you are here? If you are here, it means that you are still drinking it. So they says छोड़ दो उनको। इसका मतलब है कि मोह रूपी, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मेरी बात सुनो। और मेरी बात तुम तभी सुन पाओगे कि जब तुम अपना मोह रूपी इंटॉक्सिकेशंस में से बाहर आओगे। ओके, तो उनमें से बाहर आओ और अपने आप को पहचानो। भूल आपको, अपने आप को भूल गए हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने आप को भूल गया हूं, तो मुझे किसको पहचानना है? अपने आप को, राइट। सही हाँ। ना? हाँ। हाँ। अपने आप को पहचान के यहाँ वहां मत घूमो। अभी तुम कहाँ पे घूम रहे हो? संसार में घूम रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि हाँ, अपने आप को पहचान के संसार में मत घूमो, मोक्ष में चले जाओ। समझ गए ना? मनी, समझ में आया? ओके, मुझे समझा दो, चलो आप दोनों फटाफट समझा दो, फिर हम कूट खेलते हैं। हाँ, इसका मतलब होता है बेसिकली कि आपको खुद को जानना इम्पोर्टेंट रहा। हाँ। आपको अगर खुद को नहीं जानोगे तो पता नहीं क्या कहाँ? हो। हाँ, कहाँ पे घूमते फिरोगे? संसार में घूमते फिरोगे। ओके। हाँ, और इसके लिए आपको किसको, कौन सी शराब नहीं पीनी है? मोह रूपी। सिर्फ अपनी तरफ से रिलेशंस मत रखो यार, रेसिप्रोकल होना चाहिए, राइट। इन रिलेशंस, इन एनी रिलेशंस देयर शुड बी रेसिप्रोकल, सही ना? मैं कुछ तुम्हें दूं तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना है, तभी तो रहेगा। वन साइडेड होगा तो क्या होगा? राइट नाउ यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग वन साइडेड, वन साइडेड लव कर रहे हो, वन साइडेड सब कुछ एक ही साइड पे, सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो ये वो बोल रहा है कि भाई हाँ, इसी को तो मोह कहते हैं। तो अब तो जागो यार, वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। हम्म। ऐसे। ओके। तो चलो अभी हम कहूट खेलते हैं। आई थिंक दिस वन इज यू ऑलरेडी नो, राइट। सो दिस वर्ड इज विल डन थ्रू एंड दिस इज ऑल्सो डन थ्रू। ओके, इसमें भवी एक शब्द आया था। सो भवी का मतलब दो है, दो तरह से हम मानते हैं। फर्स्ट वन, भवी मीन्स इन फ्यूचर। ओके, जो अपना कल्याण करके, अगर तुम फ्यूचर में अपना कल्याण करना चाहते हो तो अभी सुनो, क्योंकि अभी सुनने के बाद तुरंत ही तो कल्याण होगा नहीं। सही ना? समझ गए मनीत? एग्जाम्पल। ओके, मैं तुम्हें विनिंग लॉटरी देता हूं तो तुम्हारे पास विनिंग लॉटरी आ गई। जैसे आज पावर बॉल खेलना था, तभी वो रिजल्ट आया और तुम्हारे पास विनिंग लॉटरी, वही लॉटरी है तुम्हारे पास, तो तुम्हें अभी पैसे मिल गए क्या? हाँ ना? नहीं। नहीं, तुम्हें फ्यूचर में मिलेंगे। तो ये भवी मीन्स फ्यूचर में। ओके, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम कब करना पड़ेगा? अभी। सही ना? यू आर डूइंग नाउ एंड यू गेट द रिजल्ट इन अ future. So that is the first one. Second meaning of the bhavi is, means there are the two kinds of those, the qualification is a one is a bhavya and it's abhavya. So that is a qualification. Okay, that is a qualification. So whoever is the bhavya, only they can attend a moksha. But we can put it in a reverse way. Okay, जिसके पास लॉटरी होगी उसी को पैसा
मिलेगा, जिसके पास विनिंग टिकट होगी उसी को पैसा मिलेगा। सही है। तो जो विनिंग प्राइज लेने के लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए अर्णव? हाँ, ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, मैंने अभी एक लॉटरी जी। एग्जांपल दिया कि अभी जो जैसे वे सारे पावर बोल रहे, जैसे एग्जांपल पावर बोल का ही ले लेते हैं कि पावर बॉल पे 200 मिलियन का विनिंग प्राइस था। ओके, if you want to get a 200 million winning prize, then what you should have? करेज वो होना चाहिए। विनिंग लॉटरी, जिस जिस लॉटरी पे वो नंबर लगा वो लॉटरी तुम्हारे पास होनी चाहिए। सही है, हाँ, राइट? सो हाँ, ओके। और अगर वो लॉटरी होगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी। विनिंग प्राइज मिलेगा ना। हाँ, तुम, हाँ, जो जो प्राइस जो डिक्लेयर्ड है वो तुम्हें मिलेगा ना, अगर तुम्हारे पास लॉटरी होगी तो। हाँ, बस तो यही तो वो बोल रहे कि एक भव्य एंड एक अभव्य, सो दैट इज अ क्वालिफिकेशन। सो इफ यू हैव a winning lottery, then you can get winning prize, right? और winning prize के लिए तुम्हें क्या चाहिए? If you want to get that the prize, you needed that the lottery which number is already been picked up, a winning lottery चाहिए। सही है। तो चाहे इधर से देखो या चाहे उधर से देखो, समझ गए? सो दैट इज द क्वालिफिकेशंस। व्हाट द क्वालिफिकेशंस you need it? Oh, that the lottery who has those the winning numbers, correct? So that is the qualification। सही ना? कई सारी लॉटरीज है, सबको तो इनाम मिला नहीं मिला, उसी लॉटरी को मिला कि जिसके अंदर वो सारे विनिंग नंबर थे। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन। सो दैट इज द भवी एंड अभवी। All right. So that is also one kind of the qualifications. But whenever you are listening these months, it means that you are qualified. Otherwise, if you are not qualified, that means you never able to listen it. समझ गए? अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं होता, अगर तुमने लॉटरी लिया ही नहीं होता, तो तुम नंबर थोड़ी देखने जाते कि कौन सा नंबर आ रहा है, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। तुम नंबर कब देखते हो? जब तुमने लॉटरी का टिकट लिया है। सही है ना? इसका मतलब अभी तुम सुन रहे हो तो तुम सभी, हम सब सारे भव्य जीव ही है। ओके, प्रिटी इजी। ऑल राइट, सो लेट्स प्ले कहूट 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 भाई कहूट कहूट। ओके, रेडी फॉर कहूट मनीत? Okay, just give me a second. I am opening it. Okay, why they are asking? Oh, we haven't played this code for long, and now they are asking to do any login. So let me see.
I need to leave. Can I leave? Uh, okay, just hold on. I'll try to. That means open this the Kahoot. Okay. But now they want it to do this the sign in. Okay, so that is what I try to resolve this the issue. Just give me a second. Okay, if we can play it out now, then okay, just give me a second. Let me see if I can. Manit, we'll do playing a Kahoot next time. Okay, because this will be taking little longer time. This they are not allowing us to do so. I will ask them why it is so. But in next class, we'll playing a Kahoot for both of this one and another one. So we'll start playing Kahoot first in middle one after doing our little bit revision and also in the end as well. Okay. So with this one, we are concluding our today's sessions with reciting a Namokar mantra. Arnav and Manit, can you both unmute your cam, your mic and camera on? Let's recite a Namokar mantra. Namo Hari Namo Arihantanam Padam. Namo Namo Sridhar Sridharam. Namo Hari Param Hariharam. Namo Namo Vajrayaram Namo Lokaye Sarvasamadam. Lokeso Viso Panchadamakaram. Sarva Bhava Parashanam. Parasana Panchadam Mangalam cha Sarvesim Padmam Havai Mangalam. Mangalam. Jai Jinendra. Jai See Jinendra. you in the next class. Bye. Jai Jinendra. Bye. Jai Jinendra.